Let's bow our heads in prayer. प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, thank you, Lord, that you are present in our midst. धन्यवाद परमेश्वर की तुम्हारे बीच उपस्थित है। Thank you, Lord, for having saved us. धन्यवाद परमेश्वर की तूने हमें बचाया है Freedom from this present world which is controlled by the devil. और ये जो संसार है जो शैतान के नियंत्रण में है उससे तूने हमें छुड़ाया है। Thank you, Lord, you are there with us in every step of our way. धन्यवाद परमेश्वर की तू हमारे साथ जीवन के हर कदम पर है। Thank you, Lord, through all the hardships that we go through. धन्यवाद परमेश्वर सारी मुश्किलों के लिए जिसके द्वारा हम Lord, जाते to हैं help us and be at our side. ताकि तू हमें मदद कर सके और दिखा सके कि तू हमारे पक्ष में। Thank you, Lord, for having led us thus far. धन्यवाद परमेश्वर की तूने यहाँ तक हमारी अगुवाई की है। Lord Jesus, help us to look at you in all situations मदद करके हम लोग हमेशा तेरी ओर देखें and really follow you, Lord. और फिर तेरा पीछा करें। Thank you, Lord. Fill us with thy spirit now, we pray. धन्यवाद प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से भर हम प्रार्थना करते हैं In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में। So today we have a general sharing, and then we'll have a dedication of Sasmit and Panita's baby, and so we'll have to finish a little early. So after I share, we'll hear Brother Ratnaswamy share, and hear Brother Parantaman share, and Brother Ashwin, and there won't be time for much, so we can share briefly after that. So let's turn to our Bibles in 2 Corinthians chapter 3, दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 3 verse 18. दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 3 वाक्य 18। It says, "But we all with unveiled face, beholding as in a mirror the glory of the Lord, are being transformed into the same image from glory to glory, just as from the Lord the Spirit." परंतु जब हम सब के उगाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। It says, verse 1 of chapter 4, "Therefore we do not, having this ministry as we have received, we do not lose heart." फिर वाक्य चैप्टर 4 वाक्य 1 में लिखा है, इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हम यह सेवा मिली तो हम हिवाए नहीं छोड़ते। What is the purpose of all of us gathering here and following the Lord? हम सभी का यहाँ पे इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या है और सभी लोग प्रभु का पीछा करने का उद्देश्य क्या है? And verse 18 is that we have to be transformed into the image of Jesus Christ. वाक्य 18 में लिखा है कि हम लोग को प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाना है And this happens by the Holy Spirit. और ये पवित्र आत्मा के जरिए होता है। As we listen to the Holy Spirit, then we become changed. जैसे हम लोग पवित्र आत्मा की बातों को सुनते जाते हैं हम लोग बदलते जाते हैं। We know so much of change has been there in our own life. हम लोगों ने पहले से ही जाना है कि कितना कुछ हमारे जीवन में बदल चुका है। We have been slave to so much of bad habits and sins. एक समय पे कितने सारे गलत आदतों और पापों के हम लोग गुलाम थे। And when we yielded our life to Jesus Christ, the Lord Jesus Christ saved us. फिर बाद में जब हमने अपने जीवन को परमेश्वर की ओर समर्पित किया तो प्रभु यीशु ने हमें छुड़ा दिया। And daily the Lord is transforming us and changing us. और फिर हर रोज प्रभु यीशु हमें बदल रहे हैं, हर रोज हमें हमारे अंदर एक परिवर्तन ला रहे हैं। To the degree that we yield, look at Jesus and ask Him for help, the Holy Spirit changes our lives. जितना हम लोग प्रभु यीशु की ओर देखेंगे, उसकी मदद लेंगे, उतना ही पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदलता है। That is the meaning. What we get then is the life of Jesus Christ. तो हमें ये सब चीजों के से क्या मिलता है? प्रभु यीशु का जीवन। That is the nature of Jesus Christ. और वो है प्रभु यीशु का स्वभाव। And that is the most important thing in this world. और इस दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण बात वही है। Nothing else is more important. और कोई भी चीज उससे ज्यादा जरूरी नहीं है। If I have the character and nature of Jesus Christ that is increasing in my own life, then I really got what God wants me to have. अगर मेरे जीवन में प्रभु यीशु का चरित्र और स्वभाव और बढ़ते जा रहा है तो वो सबसे जरूरी बात या सबसे महत्वपूर्ण चीज मैंने पाई है। All other things like ministry and all are secondary. बाकी जो भी चीजें हैं सेवकाई वो सब बाद में आती है। If I'm not allowed to, cannot sing in the church, I cannot share. That is at least very small, not at all important. अगर मुझे यहाँ पे वचन बांटने नहीं मिल रहा है या गीत गाना नहीं मिल रहा है तो ये सब बहुत ही छोटी चीजें हैं। First thing is the life. सबसे जरूरी बात है जीवन। That is the life of Jesus Christ should be manifest in this body of ours. और वो है कि प्रभु यीशु का जो जीवन है हमारे शरीर में उसको यहाँ पे प्रकट होना है। And that is what we were thinking about it last time also. That is also known as wisdom from God. और Wisdom of God. ये चीज के बारे में हम लोग पिछली बार भी सोच रहे थे और यही चीज को हम लोग परमेश्वर से आने वाली बुद्धि भी समझते हैं। And Christ is the wisdom of God. और प्रभु यीशु ही परमेश्वर से आने वाली बुद्धि है। And since we have got this wonderful calling in our life, say we must not give up or lose heart. और क्योंकि हमारे पास इतना अच्छा बुलावा आया है परमेश्वर की ओर से तो हमें पीछे नहीं हटना है या निराश नहीं होना है। Many times we just feel like giving up. कई बार ऐसा लगता है कि हम लोग बस पीछे हट जाएं। Just it is known as getting despair. या उसको एकदम बहुत ही ज्यादा दुखी या बहुत ही ज्यादा निराश होना What is the बोलते meaning of हैं। despair? तो बहुत ही ज्यादा निराश होने का अर्थ क्या है? Sometimes some people say I am in the depth of despair. कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दुख के एकदम गहराई में हूँ। There is one person who asked one elderly lady, "Do you know what does it mean to be in the depths of despair?" एक बार एक व्यक्ति ने एक बुजुर्ग स्त्री से पूछा कि क्या आप समझते हो दर्द के या दुख के एकदम गहराई में रहने का मतलब? And that lady said, "No, I don't, because going into despair is turning your back on God." तो वो बुजुर्ग स्त्री ने बोला कि नहीं मैं नहीं जानती क्योंकि वो गहराई दुख के गहराई में जाने का मतलब ये है कि तुमने परमेश्वर की ओर अपना पीठ दिखा दिया है। When we say, "Lord, these troubles in my life are just too much for me." तो हम लोग कभी-कभी कह देते हैं कि ये जितनी मुश्किलें हैं मेरे जीवन में जो परीक्षाएं हैं बहुत ही ज्यादा है मेरे लिए। Lord, you seem to have forgotten me. अच्छा लगता है परमेश्वर कि तू मुझे भूल चुका है। Lord, I'm also forgetting about you. प्रभु मैं भी फिर तेरे बारे में भूल जाऊंगा। No, sometimes all of us go through very difficult situations. कभी-कभी हम सभी लोग काफी मुश्किल परिस्थितियों के बीच से The गुजरते हैं। Apostle Paul said, "I am perplexed but not in despair." प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है लेकिन मैं फिर भी निराश नहीं होता। That verse in verse 8. वाक्य 8 में दूसरा कोरिन्थियों चैप्टर 4 वाक्य We 8 are perplexed but not despairing.
पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय हो तो है पर निराश नहीं होते। God doesn't tell us why people behave like that, why the situations are coming across your way. He's not there to give you explanations. परमेश्वर कई बार तुम्हें बताता नहीं कि तुम क्यों कोई मुश्किल परिस्थिति के जरिए गुजर रहे हो, क्यों तुम्हारे साथ कुछ लोग सही तरीके से बर्ताव नहीं कर रहे हैं, वो तुम्हें कोई भी ये सब चीजों के बारे में विवरण नहीं देता। The only explanation that he says is that everything is working together for your good if you love him. वो तुम्हें बस एक ही चीज समझाता है कि हर एक चीज जो तुम्हारे साथ हो रहा है तुम्हारे अच्छे के लिए हो रहा है, अगर तुम उसे प्रेम करते हो तो। And we have to believe that. और हमें इस बात के ऊपर फिर विश्वास करना है। When we believe that, we will see the work in action. और जब भी हम लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे तो हम लोग ये कार्य को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। There are so many hardships and problematic people that come across our way. कितने सारे मुश्किल परिस्थितियां और लोग हमारे जीवन में आते हैं। And if at the smallest thing, if we try to give up, then the Bible says your strength is very small. You don't trust in God. और अगर ऐसी छोटी छोटी बातों में हम लोग पीछे हट जाएंगे तो फिर परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा जो ताकत है, सामर्थ्य है, बहुत ही कम है। We had a sister who came to our church for many years back, बहुत साल पहले एक बहन हमारे कलीसिया में आई थी and she was quite eager. She came from a Roman Catholic background, और वो रोमन कैथलिक बैकग्राउंड से आई थी and she trusted in God and really was interested in following the Lord. और वो परमेश्वर पे भरोसा रखती थी और दिलचस्पी रखती थी कि वो सब पीछा करे ठीक से। Then children's exam results came, और फिर उसके जो बच्चे हैं उनका परीक्षण का रिजल्ट आया and the children failed. और उनके जो बच्चे थे वो फेल हो गए। Then she said, "Daddy, I started following the Lord, and my children have failed." और फिर उसने ये बोलना शुरू किया कि मैंने तो परमेश्वर का पीछा करना शुरू किया है और मेरे बच्चे तो फेल हो गए। And she put the blame on God. और उसने ये बात का दोष परमेश्वर पर डाल दिया। Start blaming God. Blaming God is a very bad thing. तो परमेश्वर को दोषी ठहराना बहुत ही गलत चीज है And because of that, she left the faith. और उसकी वजह से उसका विश्वास भी वो खो बैठी। So easy for us to, some difficult situations come for people to lose the faith. कितना आसानी से हम लोग अपने विश्वास को खो बैठते हैं जब भी हम लोग कुछ मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते The हैं। Lord tells us we have to endure right up to that very last day. लेकिन परमेश्वर कहता है तुम्हें अंत के दिन तक डटे रहना है। That Jesus said, those who will be saved, who will endure to the very end. प्रभु यीशु ने कहा कि जो लोग अंत तक डटे रहेंगे वही बचाए जाएंगे। So none of us are safe. तो हम कोई भी यहाँ पे पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। If after today I've lived a very good life and tomorrow and after next year I start doubting God and I can go back on God. हो सकता है कि आज तक मैंने एकदम सही तरीके से अपना जीवन जिया है, लेकिन कल से फिर मैं प्रभु यीशु के ऊपर शंका करने लगूं और अपने तरीके से जीवन जीने लगूं तो मैं भी अपने मसीह जीवन से पीछे हट सकता हूं। Then we lose our faith and it goes badly with us. और फिर हम लोग अपने विश्वास को खो बैठते हैं और फिर हमारे साथ भला नहीं होता। And whatever life of Jesus God accomplished in our life, it has all gone away. और जो कुछ भी अभी तक परमेश्वर ने हमारे जीवन में कार्य किया है वो पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाता है। But every day we have to endure. लेकिन हर रोज हमें डटे रहना है, सहना है। The Bible says that in the Apostle Paul says to the Corinthians in verse 10 and 11. प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों के लोगों को वाक्य 9 और 10 में कहता है, Always carrying about in the body the dying of Jesus, वाक्य 10 में, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं so that the life of Jesus may be manifested in our body. कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। Every day the dying of Jesus. हर रोज प्रभु यीशु का मृत्यु। We know about the cross of Calvary. हम सभी लोग कैलवरी के क्रूस से वाकिफ हैं, Jesus died for us for our sins. जहाँ पे प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए वहाँ पे मरे। Most believers know that, ज्यादातर विश्वासी ये चीज के बारे में जानते हैं, but they don't know about the daily cross. लेकिन वो लोग हर रोज का जो क्रूस है उसके बारे में नहीं जानते। That is not the dying of Jesus. उसको बोलते हैं प्रभु यीशु का मृत्यु। Jesus also carried his cross daily. प्रभु यीशु अपने क्रूस को हर रोज उठाते थे। What is the meaning of that? इसका मतलब क्या है? He did not do his own will. उसने अपनी खुद की इच्छा नहीं की, He did his Father's will. उसने अपने पिता परमेश्वर की इच्छा की। He asked God, Lord, what shall I do in this situation? उसने पूछा कि परमेश्वर ये परिस्थिति में मैं क्या करूं? Lord said, do this. परमेश्वर ने कहा तुम ये करो। The same way in our own lives, उसी तरीके से हमारे जीवन में भी when any problem come, जब कोई मुश्किल चीज आती है, any situations come, कोई मुश्किल परिस्थिति आती है, ask God. The Holy Spirit will tell us what is true. उस समय परमेश्वर से पूछो और पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा तुम्हें क्या करना है। Many times we don't ask. कई बार लेकिन हम लोग पूछते ही नहीं, We do what we like. हम लोग वही करते हैं जो हमें पसंद है, That means doing our own self will, या हम लोग अपनी स्वार्थी इच्छा करते हैं and that results in a lot of chaos and confusion. और इसी के जरिए बहुत सारी उथल पुथल जीवन में आ जाती है, We like to do what we like to do. क्योंकि हमें वही करना अच्छा लगता है जो हमें पसंद We है। are born like that, हम लोग उसी तरीके से पैदा हुए and हैं that's why we have to die every day. और इसलिए हमें हर रोज खुद की ओर मरना है। That is one of the dying of Jesus. इसको बोलते हैं परमेश्वर प्रभु यीशु का मृत्यु। So many times we have to die. कितने बार हमें मरना पड़ता है। The more we die in our own life, the more the life of Christ is made manifest in our life. जितना हम लोग मरते जाते हैं उतना ही प्रभु यीशु का जो जीवन है हमारे जीवन में प्रकट होता है। How many deaths we have to die? कितने सारे मृत्यु को हमें सहना है, मरना है, And to die is not an easy thing. और मरना आसान चीज नहीं है। Who likes to die? किसको पसंद है मरना? The dying is very simple. मरना बहुत ही साधारण सी चीज है। So let's go and look at the people in the hospital. जाके अस्पताल में जो लोग हैं उनको देखो, They suffer and die. वो लोग दुख उठा उठा के फिर मर जाते हैं। Very few people have an instant death. बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जिनका जो मृत्यु होता है वो तुरंत हो जाता है, Quick death. बहुत ही जल्दी से हो जाता है। One of the quickest death is not get shot. शॉर्ट। Yeah. तो एक बहुत ही जल्दी मरने का तरीका ये है कि अगर तुम्हें गोली मार दे, If dying for Jesus once will be, they'll say, okay, ठीक है, Lord, I'll die once and I'll go straight to heaven. तो अगर किसी ने बोला कि तुम्हें प्रभु यीशु के लिए एक समय या एक क्षण में मरना है तो हम लोग बोलेंगे हाँ मैं मरने के लिए तैयार हूँ और उसके बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा। But to die every day for 20-30 years, लेकिन हर रोज खुद की ओर मरना 20-30 साल के लिए, that is almost like a torture. वो तो टॉर्चर के जैसा हो गया। The Lord allows us to go through a lot of suffering. और परमेश्वर इसलिए अनुमति देता है कि हम लोग कई सारे मुश्किलों के द्वारा जाएं। In Romans chapter 8, रोमियो चैप्टर 8 verse 36, वाक्य 36 it is written,
For thy sake we are being put to death all day long. We are considered as sheep to be slaughtered. जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों की नाई गिने गए हैं। For Jesus' sake we are put to death all day long. प्रभु यीशु के खातिर हम लोग हर रोज हमारा घात किया जाता है। Now, what is put to death in our life? तो हमारे जीवन में घात किए जाने का मतलब क्या है? If I die once, I'm still living. अगर मैं एक बार मरता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं असल में तो जी रहा हूँ। Your self-will, your self-interest, your self-loves, all these have to be put to death. मेरी खुद की इच्छा, खुद की दिलचस्पियाँ, खुद की जो चीज़ें मुझे पसंद है, उन सभी को मुझे मारना है। That in our home, in our workplace, in our church. These are the three places where our self-will is put to death. मेरे घर में, मेरे दफ्तर में, कलीसिया में, ये तीन ऐसी जगह हैं जहाँ पे मेरी खुद की इच्छा को मुझे मारना है। And the Holy Spirit just comes to help us to die. और पवित्र आत्मा आया है हमारी मदद करने के लिए ताकि हम लोग इस तरीके से मर सकें, Die to our own will. खुद की इच्छा की ओर। And that involves suffering. और इसमें थोड़ा दुख उठाना पड़ता है। Those who go that way get eternal life. और जो लोग ये मार्ग पे चलते हैं वो लोग को अनंत काल का जीवन मिलता है। And those are the only people who will get the life of Christ. और ये वही लोग हैं जिनको प्रभु यीशु का जीवन भी मिलेगा। If the life of Christ can be gotten by any other way, it would have been easy. अगर प्रभु यीशु का जीवन और कोई तरीके से हम लोग हासिल कर पाते तो शायद से वो आसान होता। That's why we sing about the cross. और इसलिए हम लोग क्रूस के बारे में गीत गाते हैं। If I die, then I get the life of Christ. अगर मैं अपनी इच्छा की ओर मरूंगा तो फिर प्रभु यीशु का जीवन में प्राप्त करूंगा। We cannot get the life of Christ by studying the Bible, प्रभु यीशु का जीवन में बाइबल पढ़ने से मुझे नहीं मिलता or है coming for the meetings. या मीटिंग में आने से नहीं मिलता है। They may help us. उससे हमें थोड़ा मदद मिलती है। The ultimate thing is to suffer and to die and give up our wills. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि मैं तैयार रहूं दुख उठाने के लिए, अपनी इच्छा की ओर मरने के लिए। And by nature, we do not like that. When the suffering comes, we like to run away from it. और स्वाभाविक रूप से हम लोग जब भी दुख हमारी ओर आती है, परेशानी हमारी ओर आती है तो हमें भागना पसंद Or we fight लगता against है it. या हम उसके खिलाफ लड़ते हैं। I had a colleague in my office and one of lady doctors. मेरे ऑफिस में एक सहयोगी थी, एक लेडी स्त्री डॉक्टर। And the boss was giving all sorts of work to that person, and she was getting quite fed up with all the work. तो जो मालिक, जो बॉस था, वो हर तरीके के अलग अलग काम उसके ऊपर डाल रहा था। And I still remember saying, "Why should we suffer?" और लेडी और डॉक्टर Yeah. फिर वो जो स्त्री डॉक्टर थी वो ऐसे कह रही थी कि क्यों हमें इस तरीके से दुख उठाना है। Very frustrated. Why should we suffer? वो बहुत ही गुस्से में आ गई थी और वो बोल रही थी क्यों हम लोग इस तरीके से दुख उठाएं। Lord has called us to suffer. परमेश्वर ने हमें बुलाया है दुख उठाने के लिए। He'll allow us to suffer, and after suffering for some time, He'll give us relief. फिर अनुमति देता है कि हम लोग कई समय तक दुख उठाएं और थोड़े समय के लिए फिर हमें वो विश्राम भी देता And है। when we suffer in those situations, all our selfishness, our bitterness, our jealousy, all our pride, our self-seeking just goes away. जब भी हम लोग ये सब परिस्थितियों में दुख उठाना सीखते हैं तो हमारे अंदर की जो स्वार्थी इच्छा है, जो ईर्ष्या है, जो स्वार्थीपन है, सब निकल जाती है। And then the life of Christ comes to our life. और फिर प्रभु यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रकट होता है। And that's why the Lord, when we become born children of God, God allows us all sort of situations, people to come across our way. और इसलिए एक बार जब हम लोग परमेश्वर के बच्चे बन जाते हैं तो फिर परमेश्वर अनुमति देता है कि अनेक प्रकार के मुश्किलें हमारे जीवन में आए। Sometimes we wonder, Lord, why are the people behaving like this? कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्यों लोग इस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहे हैं, Why are people in the office behaving like this? क्यों मेरे साथ कलीसिया, मेरे दफ्तर में लोग इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, Why are my relatives behaving like this? क्यों मेरे जो रिश्तेदार हैं मेरे साथ इस तरीके से बर्ताव कर रहे Why हैं, are people in the church behaving क्यों this मेरे way? साथ कलीसिया के जो लोग हैं इस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं। Lord said it is for your sanctification. परमेश्वर कहते हैं ये तुम्हारे शुद्धिपन के लिए है। Look at Job. आयुब की ओर देखो, He was the finest man in this world. जो दुनिया में उस समय सबसे बेहतरीन व्यक्ति था, But when he went to all the difficult situations, लेकिन जब वो सारे मुश्किलों के द्वारा गया, he began to question God, Lord, why all these things are coming across my way? उस समय वो परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगा कि ये सारी मुश्किलें मेरे पास ही क्यों आ रहे हैं। And then God showed him the real problem. और फिर परमेश्वर ने उसको असली जो जड़ था समस्या का वो दिखाया, It was his own selfishness and pride. और वो था उसका खुद का ही स्वार्थीपन और उसका खुद का घमंड। Then what did he say? और फिर उसने क्या कहा, Lord, I repent in dust and ashes. परमेश्वर मैं पछताप करता हूँ धूल में और मिट्टी में, I put my hand on my mouth. मैं अपना हाथ को अपने मुंह पे रखता हूँ, I've said so many things now, I'm not going to say anything more. मैंने बहुत कुछ बोल दिया है, अब मैं और कुछ नहीं बोलूंगा। See, God wants us to come to a place of repentance in our own life. परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने जीवन में पछताप की एक स्थान पे आए। When we repent as believers, then there's rest in our own life. जब भी हम लोग विश्वासी होने के नाते पछताप करते हैं तो हमारे जीवन में भी एक सुख आता है। Repent in different situations. The Lord will speak to us in our sufferings. That these are the things that you love very much. पछताप करो और फिर जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में परमेश्वर हमसे बातें करेगा कि ये वो सारी चीजें हैं जिससे तुम बहुत ज्यादा प्रेम करते हो। It doesn't matter how long you have lived and how useful you have been to the Lord. फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने समय से तुम जिए आए हो या कितना तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है परमेश्वर के लिए। Still, the Lord shows you your own selfishness. फिर भी परमेश्वर तुम्हें अलग अलग क्षेत्र में तुम्हारा खुद का स्वार्थीपन दिखाएगा।